to accounting is the first chapter. As already you know, the first chapter was introduction to accounting, isn't it? Yes. This is the first chapter. In this chapter, we will do a study about bookkeeping, ठीक है? Bookkeeping, and then हम लोग पढ़ेंगे accounting, and then we will study about accountancy. ठीक है, फिर इसके बारे में जो डिफरेंट इसके मीनिंग्स, फीचर्स और यूजर्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दिया, वो सब बुक से भी आप रिविजन कर लोगे। पहले तो बेसिक ये चीज बता दें, बिकॉज अ ले पर्सन हु इज नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, दे थिंक ऑल आर सेम, दे थिंक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी ऑल आर सेम, बट इट इज नॉट लाइक दिस। ओके, so what is actually these are, so we have to understand. See, suppose that this is a circle, and now another okay, this is another circle, and this one, here are the three circles you can see. Okay, and you must know this is the first one circle, and this one is second, and this one is third. Okay, so these are the different circles. Why I have drawn these circles? So first, this is what हम लोग इसको कहते हैं, 1 मिनट, ओके, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द सन, एंड दिस इज फादर, एंड दिस इज ग्रैंडफादर। ठीक है, तो आपको पता है कि सन मतलब कम नॉलेज होता है सन को, क्योंकि अभी वो छोटा है। सो जो सन है, इसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। और जो फादर, फादर जो आप जिसको डिनोट कर रहे हैं, इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एंड ग्रैंड फादर जो है आपका, वो है अकाउंटेंसी। ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स, सन, फादर एंड ग्रैंडफादर। तो आपको पता है कि सन यानी कि बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग क्या हो गया? दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेज ये है। ओके, एंड दिस इज व्हाट, this this denotes अकाउंटेंसी। क्या है? ये ग्रैंडफादर यानी ये बेस है। ये क्या है? बेस है आपका, किसका? फादर और ग्रैंड सन जो है, मतलब कि सन और फादर, इन दोनों के भी फादर ये है, यानी दीज आर द बेस। यानी whatever the books of account is to be maintained by different accountant, whether they are maintaining the bookkeeping or accounting, all these books are to be maintained on the basis of accountancy.
So accountancy is what? So accountancy refers to the knowledge of techniques, guidelines, principles, which helps accountant in maintaining the books of account. So accountancy includes guideline, principles. Okay. So I'm writing here some keywords so that you can understand accountancy is what. So here, uh, yes. So, so accountancy is the systematic knowledge of principle. It is what? Systematic knowledge of principles. Okay. And techniques applied in accounting. This means accountancy is a broad term, is a broad term which includes both accounting and bookkeeping. Okay, so ये दोनों इंक्लूड कर लेता है because कि ये accountancy provides the systematic knowledge of principles, guidelines, and techniques applied in accounting. It says to the accountant or it tells about the information how to put into the format, how to record the business transaction into the books of account, and how to apply the different principles, how to present the financial reports so that everywhere can be uniformity. Okay, so accountancy is the broad term which includes accounting and accountancy. Okay, bookkeeping. So bookkeeping is what? Bookkeeping is the primary stage or first stage under which very first time here very very first time. Okay, very first time we record transactions in a set of book. In a set of book. This means we can say that bookkeeping is an art of recording the all business transaction and events which are at least of financial character and then classify or post them into the ledger. तो सबसे पहले bookkeeping में क्या करता है? Record करता है और फिर classify और post into the ledger. ये काम करता है. और accountancy is the secondary यानी कि when bookkeeping ends, जब ये end होता है, bookkeeping end होता है, so ये क्या होता है? ये start होता है. Starts. Okay. So when bookkeeping ends, the work of bookkeeping finished, then accounting start. Accounting starts with the summarizing the data supplied by the bookkeeping. यानी जब बुक कीपिंग जो डेटा सप्लाई करता अपना काम करके यानी वो
सारा रिकॉर्ड करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होता है वो सप्लाई करता है अकाउंटिंग जो एक्सपर्ट्स होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है यहाँ पे, ये दिस इज व्हाट क्लरिकल लेवल जॉब, ठीक है, क्लरिकल लेवल जॉब। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती, बट अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। एक्सपर्ट हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि who knows the well good theory or depth knowledge, having the depth knowledge of accountancy, rules, regulation, principles, guidelines, techniques, how to summarize everything he must know. And bookkeeper is the primary level stage. Junior staff is maintain this book of accounting, but senior staff is maintain this accounting or book of accounting. Okay. So students, I hope कि you all are clear that कि bookkeeping is the first, second this one, and third this one. So bookkeeping just like a son, and accounting is father of this son, and grandfather yani he is the father of accounting and grandfather of son. Yani कि bookkeeping is the grandson for the accountancy. Just for a imaginary relationship. Okay. So now you have understood accountancy, what it's a provides the systematic knowledge of principles and techniques applied in accounting, and which helps both accounting and bookkeeping. All the accountant in every organization record all the business transaction and events on the basis of accountancy. They have to follow the rule, regulations, principles, and guidelines of the accountancy. Okay, this is the guidelines given by accountancy. This is also known as GAAP. Okay, GAAP means what? Generally accepted accounting principles which are applied to overall the world. Okay, so these are the things. Now I hope you have understood which come first, which come later. Now next, so just I am going to teach you what are the steps we take into the bookkeeping and accounting. Earlier I have taught, but I want to make it very clear, and the third chapter of fourth chapter also will cover it. So process of accounting. Okay. Process of accounting says about first 1 minute. Yes. Identification. Identification of transactions which are of financial character. Financial character. ठीक है, तो पहला स्टेप जो अकाउंटिंग प्रोसेस का है, दैट इज व्हाट कि आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, देन preparation of voucher, because no any transaction can be recorded without voucher. And third, recording. So, recording of transactions in the book. ठीक है, यानी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और किस बेसिस पे? वाउचर के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो वाउचर जिस ट्रांजैक्शन के लिए क्रिएट किया गया उसके लिए, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके वाउचर क्या होता है। देन पोस्ट देम इनटू लेजर। पोस्ट देम, देम का मतलब यहाँ पर जो हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं या रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री के फॉर्म में करते हैं, फिर जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में कन्वर्ट करते हैं। पोस्ट देम इनटू लेजर, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफाइंग, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आता है समराइजिंग।
तो समराइजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? समराइजिंग में तुम्हारा आता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और एक होता है, हालांकि इसी के अंदर ट्रेडिंग पीएल भी लिखते हैं लेकिन हम इसको अलग से दिखा देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये समराइजिंग में ही आएगा बट हम अलग से स्टेप के रूप में दिखा दे रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड टू थिंग्स एंड क्या क्या है? पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड बैलेंस शीट, ठीक है। सो अब आप लोग ध्यान से समझेंगे कि हम जो बताने जा रहे हैं इसको। तो वेट, यस, सो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से लेकर के पोस्ट देम इनटू लेजर यानी लेजर तक, ये जो इतना स्टेप है ये कहाँ आता है? बुक कीपिंग में। सो बुक कीपिंग, इसके बाद बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो आता है ये होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। सो बुक कीपिंग एंड accounting. So you have understood and how to record transaction into the bookkeeping and accounting. It is based on the accountancy because accountancy is the systematic knowledge and principles or guidelines. It tells about how to make the record in the books of account of the business transaction, how to present the this and how to prepare the format. Everything, every guideline would be given in accountancy. Okay, so accountancy is the overall theory and practice. Accountancy is the knowledge of theory and practice both, and bookkeeping and accounting is the practice of knowledge and theory which provides by the accountancy. Okay, so this is what, and now अकाउंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप लोग बुक से पढ़ेंगे, उसको रिवीजन में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर। नाउ वी आर कमिंग टू द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत बड़ा है और हम थोड़ा सा पहले आपको दो चीज़ों में बताना चाहते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है सबसे पहले। कुछ चीज़ें तो आप लोग को पता है, ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। सो आपको मैं बता दूं कि अगर से मान लेते हैं कि ये आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये ए बी सी जनरल स्टोर, ठीक है, ये आपकी बिजनेस है। सो एबीसी नाम का ये जो है, मान लो कि एक ओनर है, एबीसी एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन क्या करता है? पर्सन जो स्टार्ट किया है बिजनेस, इसको हम ओनर कहते हैं। एबीसी जनरल स्टोर एक अलग एंटिटी है, दिस इज अ इकोनॉमिक एंटिटी, या मैं इसको कह सकता हूँ ये, सॉरी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो दिस मीन्स ये जो एबीसी हैं,
ये एक एबीसी नाम का, या एबीसी हटा दे, थोड़ा सा आप लोग को ऑड लग रहा होगा, मैं इसकी जगह कोई एक नाम रख देता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैं एक नाम ले लेता हूँ। मान लो कि नाम में है पल्लवी जनरल स्टोर। ठीक है, पल्लवी जनरल स्टोर्स। तो पल्लवी, मान लो कि एक बिजनेस स्टार्ट करती है पल्लवी जनरल स्टोर के नाम से। ठीक है, सी डील्स सो मेनी जनरल आइटम्स। सो इसके लिए पल्लवी ने सबसे पहले क्या किया होगा? तो पल्लवी पैसा इन्वेस्ट की होगी। सो पल्लवी इन्वेस्ट इन्वेस्ट हर मनी। ठीक है, मनी और कैपिटल, यानी जो पैसा घर पे जमा होता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो मान लो कि पल्लवी ने 2 लाख रुपया लगाया। कितने रुपए से? 2 लाख। ये किसको दिया? ये पल्लवी जनरल स्टोर को इन्होंने दिया। ठीक है, पल्लवी जनरल स्टोर का जो अकाउंटेंट होगा, आप सभी लोग जो बैठे हो आप लोग अकाउंटेंट हो पल्लवी जनरल स्टोर्स के। तो अकाउंटेंट हाथ फैलाकर इससे पैसा ले लेगा। 2 लाख रुपए इनके पास आ गया। तो अब ये 2 लाख रुपया कहाँ रखेंगे? इस 2 लाख रुपए को, देखो, ये अकाउंटेंट है, यानी आप लोग को पल्लवी से पैसा मिला, तो आपको टर्मिनोलॉजी पता है कि ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक प्रकार का लायबिलिटी होता है। क्यों होता है लायबिलिटी, हम बताएंगे। जो दूसरों से लिया हुआ पैसा होता है, यानी जो बिजनेस का नहीं है, यानी पल्लवी जनरल स्टोर्स खाली हाथ पैदा हुआ था। इसके पास अपना कुछ नहीं है, याद रखो, ये जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग होता है। जैसे एक इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, ठीक उसी तरह कोई भी बिजनेस एंटिटी होता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता। उसको बिजनेस रन करने के लिए किसी से पैसा लेना होता है। पैसा वो दो लोगों से ले सकता है। एक तो होता है ओनर, और एक होता है मनी लैंडर। मनी लेंडर यानी जो पैसा उधार दे। ठीक है, तो ओनर से जो पैसा लेता है उसको कैपिटल कहता है। ठीक है, और जो मनी लेंडर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिससे हम पैसा उधार लें, तो उनको हम लोन कहते हैं। ठीक है, तो या बोरोड फंड कह सकते हैं, बोरोड फंड। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कि जो अकाउंटेंट है, यानी पल्लवी जनरल स्टोर का, उसके पास अपना कुछ नहीं है। पल्लवी से उसने पैसा लिया कैपिटल के फॉर्म में, और ये पैसा ये अपने दूसरे हाथ को दे देता है रखने के लिए, जो कि कैश के फॉर्म में हो गया। यानी ये कैश के फॉर्म में पल्लवी दी 2 लाख, तो 2 लाख इनके पास हो गया। ठीक है, अब ये अकाउंटेंट करता क्या है? तो देखो, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आ गया 2 लाख रुपया कैपिटल, और जरूरत पड़ेगा तो और कहीं ना कहीं से उधार लेगा, बैंक से लोन लेगा, वॉटेवर। लेकिन इस पैसे से इसने क्या किया कि और बिजनेस चलाने के लिए सामान खरीदा। जैसे इस पैसे को यूज किया उसने, 2 लाख रुपया अपने पास से यूज करके इसने क्या किया? गुड्स खरीदा। गुड्स को हम लोग, जो गुड्स खरीदने के बाद बिजनेस में पड़ा रहता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। फिर इसने कुछ मशीन खरीदा। ठीक है, फिर फर्नीचर भी खरीद लिया, जरूरत होगा बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये सब क्या है? देखो, आपके बिजनेस की रिसोर्सेज, तो जो भी बिजनेस की रिसोर्सेज होती है कुल मिलाकर 2 लाख ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 लाख रुपया मिला। इस 2 लाख में से कुछ पैसे का गुड्स खरीदा, कुछ का मशीन, कुछ का फर्नीचर, बाकी जो बचा होगा वो कैश में पड़ा होगा। अगर हम इस 2 लाख में से निकाल कर थोड़ा थोड़ा बांट दें तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स अगर खरीदा मान लो 50,000 का। ठीक है, मशीन खरीदा 30,000 का, फर्नीचर खरीदा 20,000 का। तो अब हमारे पास कैश घटकर कितना हो जाएगा? कैश घटकर 1 लाख रुपए हो जाएगा, वो मैं अभी लिख देता हूँ। तो कैश जो अब हमारे पास होगा, वो कैश की वैल्यू 2 लाख पहले थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 1 लाख रुपए होगी। तो जोड़ लो आप, ये तीनों मिला लो, तो 1 लाख आ रहा है।
ठीक है, और 1 लाख ये 2 लाख और 2 लाख इधर है। ठीक है, तो अकाउंटेंट के जो दो हाथ होते हैं, एक को हम LHS और एक को RHS। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ये इनका लायबिलिटी वाला पर्सन होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, सॉरी, सो लायबिलिटी का मतलब होता है बोरोड फंड, मतलब डेब्ट। लायबिलिटी मीन्स डेब्ट। ठीक है, डेब्ट हो गया। तो लायबिलिटी में दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल कहते हैं, जो कि ओनर पैसा लगाता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को बोरोड फंड या दूसरे लोगों से हम जो भी पैसा या सामान उधार लेते हैं, कुछ भी, वो होता है एक्सटर्नल। तो देखो, जितनी लायबिलिटी होती है उतनी ही एसेट्स होना है, क्योंकि जो पैसा लायबिलिटी के थ्रू अकाउंटेंट ओनर से लेगा, 2 लाख रुपए इसके पास आया, फिर वो 2 लाख रुपए को थोड़ा 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 करके खर्च करेगा, जो बचेगा वो यहाँ रखेगा। अगर मान लो कि इसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो ये भी लायबिलिटी में आएगा। मान लो कि बैंक से लोन लिया 3 लाख रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर गया तो ये 3 लाख रुपए हाथ फैलाकर तो बैंक से ले लिया, 3 लाख रुपए इनके पास आ गया। अब ये 3 लाख रुपए में क्या करेंगे, और कुछ खरीदेंगे? तो ये 3 लाख जब तक नहीं खरीदे तब तक यहीं पर वो 3 लाख रुपया रख देंगे कैश। ये बैंक से लोन लिया तो बैंक के फॉर्म में लिख देंगे 3 लाख रुपए। अब जैसे जैसे खर्च करेंगे इनकी ये बैंक वाला वैल्यू कम होता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। यानी किसी भी हालत में दोनों चीज बराबर होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो पैसा ओनर से या किसी दूसरे से उधार ले रहे हैं, उसे हम लायबिलिटी में रखते हैं। और जो रिसोर्सेज बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, RHS वाला, इसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एसेट्स कहते हैं, प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो यानी पल्लवी जनरल स्टोर की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो इतना है। 3 लाख रुपए का लोन हो गया और 2 लाख रुपए कैपिटल, कुल मिलाकर जितना इधर 5 लाख आ रहा है, 5 लाख की इनकी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस सही ट्रैक पे चल रहा है। यानी जितना LHS होगा उतना ही RHS होना चाहिए, जितना इधर पैसा होगा उतना ही इधर पैसा होगा। अगर पैसा लायबिलिटी ज्यादा हो गया और एसेट्स कम हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग। ओके, सो इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है बिजनेस में, वो सही है या नहीं, दोनों साइड हमारा इक्वल है कि नहीं। इसी इक्वल जो करने का जो तरीका होता है, यानी कि देखो, LHS में जो मैंने बताया, उसमें दो चीजें होती हैं। LHS में दो चीजें, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सी फॉर कैपिटल का मतलब इंटरनल। और इधर जो होता है एसेट्स होता है, A, यानी RHS। ठीक है, तो ये याद रखो कि LHS RHS मैंने सिर्फ ऐसे ही यूज किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ LHS RHS वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। तो इधर का जो वर्ड है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और ये एसेट्स, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो किन चीजों को एसेट्स में रखा जाए, किन चीजों को लायबिलिटी में, किसको कैपिटल में रखा जाए, इसकी जानकारी होना जरूरी है। और इसके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ना भी जरूरी है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब तुम्हें ये समझ में आया कि बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता। बिजनेस चलाने के लिए ओनर जो पैसा देता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ओनर के अलावा किसी और तरीके से पैसा हमारे पास आता है बिजनेस में, जैसे हमने गुड्स उधार खरीद लिया, किसी को हमने पेमेंट करना है, अभी पेमेंट नहीं किया, बाद में करेंगे, तो वो भी एक तरीके से उधार हो गया। ठीक है, तो जो अमाउंट ड्यू होता है, अब याद रखो कि लायबिलिटी साइड में जो होता है, द अमाउंट ड्यू टू अदर्स, ठीक है, जो होता है कॉल्ड लायबिलिटी, जो दूसरे लोगों को देना है। कैपिटल तो अलग हो गया, कैपिटल ओनर्स फंड को कहेंगे और किसी चीज को नहीं। कैपिटल के अलावा जो पैसा दूसरे को देना है वो लायबिलिटी। तो दोनों ही चीजें देखो लायबिलिटी में आती है, कैपिटल और ये। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लायबिलिटीज,
एक साइड होता है लायबिलिटीज में, ये दोनों चीज आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि अगर बिजनेस बंद हो रहा है, मान लो पल्लवी जनरल स्टोर बंद हो रहा है, 5 साल चलकर फिर बंद हो रहा है, वो चाहती है कुछ और करे बिजनेस, तो जब बंद होगा तो बिजनेस यूनिट जो है पल्लवी जनरल स्टोर अपने पूरे एसेट्स को सेल कर देगा, जो पैसा मिलेगा उससे सबका पेमेंट करेगा, जितने बाहरी लोग होंगे उनका पेमेंट करेगा, बाकी जो बचेगा ओनर को दे देगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दो साइड होता है, राइट हैंड यानी कि जो प्रॉपर्टी होता है इसे एसेट्स कहते हैं, और जो इधर है उसे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब द अमाउंट ड्यू टू अदर्स, और एसेट्स का मतलब, एसेट्स में दो चीजें आती हैं, कुछ तो रिसोर्सेस होती हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरत है, जैसे गुड्स, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा, कैश। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि किसी को हमने उधार दे दिया है तो वो पैसा हमारा है ना, अगर हम उधार नहीं दिए होते तो हमारे पास कैश या बैंक में पड़ा होता। या अगर हमने गुड्स किसी को उधार बेच दिया और पैसा नहीं दिया तो वो भी हमारे एसेट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बेचे होते तो गुड्स में मेरे रहता, गुड्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन देने की वजह से गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, तो उतने रुपए से कोई दूसरा चीज यहाँ जरूर ऐड होगा। यानी कि द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। एसेट साइड में हम उन चीजों को भी लिखते हैं, देखो रिसोर्सेज तो रहेगा, गुड्स, मशीन, फर्नीचर, एसेट्स ये सब रहेगा, लेकिन साथ में वो अमाउंट भी हम लिखेंगे जो दूसरे लोगों से हमें लेना है, यानी हमारा पैसा बाकी है। अगर हम नहीं दिए होते तो मेरे एसेट्स में रहता ना, मान लो कि हमारे पास 1 लाख रुपए कैश है, सॉरी गुड्स है 50,000 का, अगर हम इसको कैश में बेचते तो पैसा आता, गुड्स जाता, तो पैसा प्लस हो जाता और गुड्स माइनस होता, तो फिर भी हमारा सही रहता। लेकिन अगर हम किसी को उधार दे दिए गुड्स, तो उधार दिए, मान लो कि 20,000 रुपए का गुड्स तुमने क्रेडिट पे सेल कर दिया, ठीक है, तो गुड्स तो तुम्हारा 20,000 का माइनस हो जा रहा है, लेकिन दूसरा कोई एसेट्स तो बढ़ना चाहिए, तो उतने रुपए से हमारा एक नया एसेट्स क्रिएट होगा जिसको हम डेटर्स कहते हैं। ये सब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हो आप लोग। सो 20,000 का हम डेटर यहाँ लिख देंगे। डेटर का मतलब जो पैसा हमें दूसरों से लेना है, तो ये 20,000 यहाँ प्लस होगा और यहाँ से तुम्हारा माइनस हो जाएगा 20,000, तो देखो आपका दोनों बराबर हो गया। तो कहने का मतलब कि द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, याद रखो ड्यू फ्रॉम अदर्स एसेट्स, और बट अमाउंट ड्यू टू अदर्स, ठीक है, ये जो है वो लायबिलिटी में आएगा। तो एसेट्स और लायबिलिटी की कहानी आपको समझ में आ गई कि लायबिलिटी क्या होता है, इट्स डेब्ट और बोरोड फंड, और एसेट्स उसी पैसे से जो हम परचेस करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, ऑल द रिसोर्सेज विच वी यूज टू रन आवर बिजनेस स्मूथली इज कॉल्ड एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई एनी कंफ्यूजन? आप लोग को कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके हाँ, तो अब देखो बेटा आप लोग कि जो लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं, एल प्लस सी इज इक्वल टू ए, ये होता है। तो लायबिलिटीज में दो तरीके की लायबिलिटीज होती हैं, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और एक होता है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। सो नॉन करेंट लायबिलिटी, देखो यहाँ पर वर्ड एक निगेटिव सेंस में, नॉन करेंट का मतलब क्या होता है, देखो करेंट ईयर, अकाउंट्स में करेंट ईयर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। करेंट ईयर का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड, जनरली जो और इट इज ऑफ 12 मंथ्स, जनरली 12 मंथ्स का होता है। आगे हम इसको समझाएंगे, एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल, एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ये हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा अभी इसको समझ में नहीं आएगा, पहले इसको समझा लें हम लोग। सो देखो करेंट ईयर का मतलब 12 मंथ से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, कभी भी ईयर की बात करते हैं, याद रखो ईयर लगा हुआ है, तो ईयर हमारा जो होता है वो अकाउंटिंग होता है। तो एक करेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, तो हम ऑलवेज करेंट ईयर की बात करते हैं लायबिलिटी के केस में।
और एसेट्स के केस में प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं, बिकॉज वी मेंटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर। सो हर साल हम मेंटेन करते हैं, तो हर साल करंट ईयर ही होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब समझ रहे हो आप लोग, मैंने बताया कि डेब्ट और बोरोड फंड, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ज कहते हैं। कर्ज यानी जो पैसा हमने उधार लिया है, लाइबिलिटी का मतलब सिर्फ ये होता है, ये मैं लाइबिलिटी का सिर्फ मतलब बता रहा हूँ, करेंट और नॉन करेंट नहीं। ठीक है, या ओबिलाइजेशन टू पे डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी होता है, ओबिलाइजेशन टू डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंट में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके का बात करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे की पढ़ाई कराना है, किसी का शादी ब्याह कराना है, दिस इज नॉट हियर। यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग टर्म्स में, तो दैट इज व्हाट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पैसे से रिलेटेड, जो पैसा हम किसी से उधार लिए उसको पूरा करना, उसको पेमेंट करना, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो एक है करेंट लायबिलिटी और एक है नॉन करेंट। सो करेंट लायबिलिटी, अब आप ये बताओ, लायबिलिटी तो समझ में आ गया कि कर्ज होता है, डेब्ट होता है, या ओबिलाइजेशन टू डिस्चार्ज और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, सो लायबिलिटी जो होता है, तो इसका क्या ये हमेशा रखे रहेंगे अपने पास, पेमेंट नहीं करेंगे? अगर आप किसी से उधार ले रहे हो, चाहे पैसा उधार ले रहे हो या गुड्स उधार खरीद रहे हो, किसी भी प्रकार का, बाकी आप आपके यहाँ है किसी का, तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेक पेमेंट, आप उसका पेमेंट करोगे। तो ऐसा कोई भी लायबिलिटी जिसका हम पेमेंट यानी रीपेमेंट विद इन 12 मंथ्स करते हैं हम लोग, तो ये करेंट लायबिलिटी कहलाएगा। अगर 12 महीने के अंदर यानी एक साल के अंदर हम पेमेंट करते हैं, एक साल के अंदर का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 4 महीना, यानी विद इन 1 ईयर अगर हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी। तो ऑल दोज लायबिलिटीज विच आर रिपेबल विद इन अ करेंट ईयर इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? तो अब नॉन तो आप लोग खुद गेस कर लिए होंगे, नॉन करेंट क्या होता है। तो ऐसा कोई भी लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी which are repayable after 1 year or after current year, करंट ईयर के बाद, यानी कि या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कभी भी, यानी एक साल के अंदर हम नहीं पेमेंट करेंगे। तो करेंट वो होता है जो 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जा रहा है, एक साल के अंदर, ठीक है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में। बट नॉन करेंट वो होता है जो 12 महीने के अंदर नहीं, 12 महीने के बाद, यानी कि हमने अगर बैंक से लोन लिया, सपोज दैट बैंक लोन, तो बैंक से लोन हमने लिया सपोज दैट फॉर 3 इयर्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटी। किसी बंदे से हमने लोन लिया, चाहे वो एक साल से अधिक, 1 ईयर के लिए, ठीक है, या 2 ईयर के लिए, वर्ड एवर, यानी आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। और ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें एक साल के अंदर करना है, वो करेंट लायबिलिटी में आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा लायबिलिटी सभी को, स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, सो नाउ एसेट्स। तो अब हम लोग बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स अभी अभी पढ़ा कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए रिसोर्स होता है जिसके हेल्प से हम बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो एसेट्स यानी जो कि हमारा खुद का पैसा है, किसी दूसरे का कर्ज नहीं है, जो खुद का है, यानी कि जो खुद का है, यानी खुद का है का मतलब यहाँ पर क्या, बिजनेस,
ठीक है, जो बिजनेस का खुद का है, और ड्यू फ्रॉम अदर्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स। ड्यू फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या हुआ, वो बिजनेस दूसरों से लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, लेना है दूसरों से हमें। तो जो दूसरों से लेना है वो किसका हुआ, बिजनेस का ही तो हुआ, है ना। So all those things or all those resources, all those amount which are in the possession of business or the amount due from others is called assets. Okay. So अब हम लोग assets के बारे में बात करेंगे कि assets भी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। So there are two types of assets. One is non-current assets और दूसरा current assets. सो अब यहाँ पर तो हमें करंट और नॉन करंट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू से टेल यू द मीनिंग ऑफ करंट एंड नॉन करंट, बिकॉज नॉन मीन्स विच इज नॉट करंट। सो रिसोर्सेज देखो जो होता है, जैसा मैंने बताया कि रिसोर्सेज को हम लोग एसेट्स कह रहे हैं, ऐसा रिसोर्सेज जो सालों साल चलता जाएगा, विच वी यूज ओवर a number of period, over long period of टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे बिजनेस में। एग्जाम्पल जैसे मशीन, अब मशीन को बताओ एक रिसोर्सेज है बिजनेस चलाने के लिए, क्या मशीन को 2-4 महीने में यूज करके खत्म कर देते हैं, नो, वी यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फर्नीचर, ठीक है। सो ये सब क्या हो गया तुम्हारा नॉन करेंट एसेट्स में आ गया, जिसको हम सालों साल यूज करेंगे, ठीक है। बट ऐसा एसेट्स जो 1 साल में यूज करते हैं और वो फिनिश हो जाता है, विच we use in the same accounting period, same accounting period, or we can say which can be converted into cash within a year times, within a year's time, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है या यूज। अब जैसे क्या है, जैसे नॉन करंट में तो मैंने बताया कि नॉन करंट का एग्जांपल मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे कि अभी आपने देखा कि नॉन करंट एसेट्स जो सालों साल चलता है, जैसे कि हम कह सकते हैं मशीन, ठीक है, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग्स, एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। तो नॉन करंट में आगे बताएंगे 2 होता है, लेकिन अभी यहाँ तक इतना है। अब करंट में जैसे कि मैंने बताया कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर्स टाइम, जैसे कैश। अब बताओ कि एक कैश जो तुम्हारे पास पड़ा है, क्या वो सालों साल वही कैश रहेगा। वी यूज सेवरल टाइम्स, वी यूज फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली जिसको हम बार बार यूज करते हैं, एंड वैल्यू चेंजेस so many times, so many times in a year, the same year, ठीक है। एक ही साल में कई बार कैश की वैल्यू क्या चेंज होगी, जैसे आपने 2 लाख रुपए लगाया, फिर वो हो सकता है बढ़ के 2.5 लाख हो गया, फिर कम हो गया, पेमेंट किया, पेमेंट करेंगे, रिसीव करेंगे, तो कैश की वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज होगी, इट विल नॉट फिक्स्ड। जो नॉन करेंट एसेट्स होता है
इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग समय तक क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, जो नॉन करेंट एसेट्स होता है इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये करेंट है, ये फिक्स्ड नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है बार बार। तो ऐसा कोई भी एसेट जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरत तो है, बट जिसकी वैल्यू एक साल में बार बार चेंज हो फ्रिक्वेंटली, ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो कैश हो गया। और इसी के साथ हम बैंक को भी रख सकते हैं, बैंक के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होता है। अब देखो दूसरा करेंट एसेट्स का एग्जांपल, गुड्स। अब बताओ, एक बार गुड्स हम खरीदेंगे तो क्या हम वही गुड्स हमेशा कई साल तक यूज करेंगे? नो। ये गुड्स अगर हमने 2021 में खरीदा तो ये 21 में ही सेल हो जाएगा। ठीक है, बल्कि हमें फिर से और खरीदना पड़ेगा 21 में, केवल इतना ही नहीं, हम बार बार खरीदेंगे, कभी 10,000 का खरीदेंगे, कभी 20,000 का खरीदेंगे, कभी 25, एज पर द डिमांड परचेस करेंगे और सेल करते जाएंगे। तो गुड्स की वैल्यू फ्रिक्वेंटली क्या होती है, चेंज हो रही है। और दूसरी चीज, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। गुड्स हम क्यों परचेस करते हैं? सेल करने के लिए, और सेल करेंगे तो सेल से किस में कन्वर्ट होगा, हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑल दोज एसेट्स व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू कैश, गुड्स हो गया। अब मान लो किसी को गुड्स उधार बेचा है आपने, तो डेटर्स। अब डेटर्स को क्रिएट होगा, ये कैसे क्रिएट होता है, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। ये सब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। तो व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो क्रिएट डेटर होता है। अब डेटर को हमने गुड्स जो उधार बेचा कितने समय के लिए, क्या हम साल कह देंगे 2-4 साल बाद पेमेंट करना है? नो, गुड्स एक हफ्ते में पेमेंट करना है, 10 दिन में तो करना है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब 3-4 महीने से ज्यादा के लिए हम लोग उधार नहीं देते हैं गुड्स किसी कस्टमर को। तो वो एक साल के अंदर कैश में वापस डेटर से हमको क्या होता है, कैश कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब बताओ कि प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज 12 महीने के अंदर, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आपने किसी को एडवांस दे दिया, तो ये एडवांस का 2-4 साल का तो देते नहीं है, हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का ही देते हैं। तो वो उतने समय में वापस कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है, ऐसा इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया है बट अभी हाथ में नहीं मिला है। जैसे किसी के लिए काम किया, यू हैव अर्नड द इनकम बट यू डिड नॉट रिसीव इट। सो इन केस में क्या होता है कि पैसा आपको मिलेगा, नो डाउट। तो पैसा मिलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि अब इनकम कहीं जनरेट किया, मान लो कि कमीशन आपने अर्न कर लिया, तो कमीशन तुरंत नहीं मिलेगा, तो कुछ समय रुक कर मिलेगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी। तो जब तक नहीं मिला है तब तक के लिए वो अक्रूड इनकम है। जैसे ही मिलता है वो फिनिश हो जाता है, वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा एसेट्स जिसको हम एक साल में कई बार यूज करते हैं और कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, which helps in the smooth running of business, is called current assets। तो करंट एसेट्स के बहुत सारे एग्जांपल है, कैश है, गुड्स है, डेटर्स है। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स के भी आप देख लिए क्या है। So you must understand, you will go through the book and you will revise see what are the assets and liabilities. I have given a slightly or lightly view of this all these things, because on Wednesday we will start the numericals, means basic first we start of accounting equation, and these accounting terminology like asset, liability, this will help you in understanding that chapter. So, okay, students. So, is there any confusion? You can ask. You can ask your problems